गोल्डमैन सैक्स वाज अमंग द फर्स्ट कंपनी टू कम और मुझे लगा था कि पहले तो अभी टेक के बच्चे होंगे, ईसी में तो कहाँ ही किसी को लेकर जाएंगे। एंड ग्लैडली आई वाज द ओनली वन हु वाज सिलेक्टेड इन ईसी। और मैंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है लिटरली डीएसए में। आपकी सारे क्वेश्चंस इन्हें मैं बार-बार ट्राई रन करती थी। You come from ECE branch, which is like I personally find it to be the most difficult core branch. So how did you manage your academics along with your placement prep? मेरे पापा ने एक चीज़ करी जो मैं सेकंड कोर्स खरीदने से पहले बहुत सोच रही थी कि बेटा कॉलेज में इतनी फीस जा रही है और एक्चुअली जिससे नौकरी लगने वाली है उस पे तुम इतना सोच रही हो और ये तो बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट है। So you got selected in Goldman Sachs, which is like a dream category company. Tell us the top 3 things that helped you get selected. फंडामेंटल्स यही रहेंगे, डीएसए करना ही पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, साथ में एआई सीख सकते हैं ताकि हमारा काम और ईजी हो जाए। Hi everyone, and today we're going to interview Yashika. Yashika is our Alpha Batch student who recently got selected in Goldman Sachs as a software engineer. अब यशिका की जर्नी से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखने को मिलेगी, which is not to quit when things get hard. यशिका ने अपनी डीएसए की जर्नी के साथ स्टार्ट किया था, बट डेफिनेटली उसमें बीच में कुछ डिफिकल्टीज आए, कुछ डिस्ट्रैक्शंस आए, एंड उसके बाद शी हैड टू रीस्टार्ट दैट जर्नी. पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि उन्होंने जब चीजें डिफिकल्ट हुई वहां पर क्विट नहीं किया, उन्होंने दोबारा से चीजों को रीस्टार्ट किया और अपना जो पूरे डीएसए का करिकुलम एंड क्वेश्चंस है उसको उन्होंने एंड टू एंड फिनिश किया एंड शी एंडेड अप गेटिंग सिलेक्टेड इनटू दिस ड्रीम कंपनी. तो आज हम जानने वाले हैं यशिका की कंप्लीट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में एंड वी विल आल्सो एक्सप्लोर द हायरिंग प्रोसेस ऑफ गोल्डमैन सैक्स. तो ओके यशिका, यू गॉट सिलेक्टेड इन गोल्डमैन सैक्स फॉर योर इंटर्नशिप एंड इट्स लाइक अ ग्रेट ड्रीम कंपनी टू गेट सिलेक्टेड इन एंड यू आल्सो प्लेस चेस as per your resume. So सबसे पहले tell us about yourself. Tell us about your college journey and first year आपने क्या पढ़ा, second year में क्या पढ़ा, third year में क्या पढ़ा. अभी third year में ही हो आप, तो 3 साल का आप बताओ. So hello everyone, myself Yashika Bansal. So I'm currently in my third year pursuing my BTech in Electronics and Communication from Indira Gandhi Delhi Technical University, and I've secured an internship at Goldman Sachs. So in my first year, basically when I wanted to change my branch from EC to CSC, and we had this option in our college that the top students in branch get to change their branch. So initially, although I bought your course, like Okay. in the very starting only I bought it that I'll start coding since I want a tech job only, and I was really disappointed with my result of JEE. So I bought your course, but in that preparation of CGPA, so I couldn't complete it because electronic syllabus is also huge. So I only used to get time on weekends. So my first year was entirely majorly focused on my CGPA only. Although I did DSA on weekends and tried to take out some time, but it wasn't very consistent. And during end sems and mid sems, I used to take a break. And one huge mistake which I did was I took a break for 15 to 20 days due to exams, and then I couldn't recall anything. So I started watching it from the first video. Okay. So it was a huge mistake. I had to redo everything. Instead of revising, I did it. So in my summer break, I realized that I had to now focus on DSA. Only branch would remain the same only. So I restarted doing DSA and also started developing my front-end skills. So I made some projects on front-end and did DSA side by side. In my third semester, I was doing DSA only. But in the mid, the course expired. And due to the lack of consistency, I couldn't complete it. So for 1 or 2 months, I thought I'll do from YouTube only since I had a lot of guilt. And I couldn't ask for that I need to buy another course. But what stuck was that on YouTube there are a lot of free resources. Suppose I need to do one topic, तो उसके लिए एक चैनल पे 5 वीडियोस हैं. मैंने वो 5 किए, क्वेश्चंस किए, सब किया. फिर मैंने दूसरे चैनल पर देखा, उस पर कुछ क्वेश्चन आए, 1-2 मुझसे नहीं हुए. फिर मुझे लगा भी नहीं हुआ है टॉपिक. फिर तीसरे चैनल पे कुछ और नया. तो 1 महीने में मेरा एक टॉपिक भी पूरा नहीं हुआ. तो मुझे सेटिस्फैक्शन भी नहीं थी कि मतलब हुआ है नहीं हुआ है, इंटरव्यू के लिए काफ़ी है नहीं है. तो फिर मुझे रियलाइज हो कि मेरे पास टाइम बहुत कम है, कंपनीज आने वाली है और ये थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट मुझे कर लेनी चाहिए दोबारा. सो आई बॉट इट अगेन. Okay. एंड दिस टाइम आई डिड इट कंसिस्टेंटली. तो you got it again, you got enrolled again and फिर आपने इस बार किया. यस मैम, कंसिस्टेंटली किया. हर दिन मैं 1 घंटा 2 घंटा निकालती थी. चाहे मेरा जैसे मैं रिसर्च पेपर भी लिख रही थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने प्रोफेसर को कमिट कर दिया था. तो मैं उसके साथ साथ भी, लेकिन मैं टाइम निकालती, चाहे रात को लेट करना पड़े, चाहे सुबह जल्दी उठ के करना पड़े, मैं रोज़ करती थी. एग्जाम्स में मैंने ट्राई किया कि 1 हफ्ते से ज़्यादा का ब्रेक ना हो. और फिर मैंने मई तक अपना डीएसए ख़त्म कर लिया था. फिर जून में मैंने रिवाइज किया और फिर मैंने वो दी. Yes, ma'am. Really good. Congratulations, Yashika. ठीक है, tell us about your interview process at Goldman Sachs. Like, what was the entire interview process like? कितने rounds थे वहाँ पर? What was the initial shortlisting criteria and what was exactly asked in each interview?
So initially there was no as such criteria. Every CGPA was allowed. Every branch was allowed. It was just that backlogs were not allowed. Okay. And initially there were 4 rounds. First was an online assessment. It lasted for an hour. So initially there were MCQs. It was both aptitude. In aptitude there were probability and permutation combinations majorly. It was of 11th, 12th, that much level only. Okay. And in coding they were asking the time complexity, space complexity and output of the programs. These were MCQs only. Okay. Then there were 3 coding questions. The first one was of a hash map. The rest were array based only, and in the third one a bit of Qs was used. And another one there was a HR question that was for the OA. Okay. Then in the interview first she asked me about my introduction. Then I had a project related to sensors. So she has worked in sensors previously, so we talked about that. Then she asked me a question on hash maps. Then that similar question could be solved on DQ also. Actually you taught us a question in course. It's related to sliding window. It was very similar to that, just a little bit condition was changed. So I actually knew both of these because you have taught us with both these data structures. I explained her, she was very impressed. And then there was another question of hash map that was also medium level question. Then we ended it. And then in the second interview round, first my introduction. Then we talked a little about my research paper. And then there was a question of trees. And there was another question of linked list. In trees, you have given us like a reading material on red, black trees. So he asked a little about those also. And was a little bit shocked that I knew about them. Okay. Since a lot of students didn't know about that. The third one was tech plus HR. So she first talked about our projects and then research paper. And then she asked me some questions related to DBMS. And then one medium level hash map question. And then it ended. Okay. And then you finally got the offer. So tell us, how many students from your college applied to the opportunity? Everyone applied because there were no as such constraints. Only the backlogs were not allowed. So everyone mostly applied. Great. Acha, tell us your preparation journey. Like you told us that you started with DSA, you left it in between, then you restarted it. ठीक है. DSA के अलावा आपने क्या-क्या चीजें थी जो पढ़ी? And yeah, tell us about that. DSA के अलावा आपने इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए what was all that you studied? मैम एक्चुअली सिंस इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना बहुत सिलेबस होता है और मैंने पहले जैसे फर्स्ट ईयर में मैं सीजी पे बहुत फोकस कर रही थी, तो जैसे इंटरनल्स के लिए और प्रैक्टिकल्स के लिए मैंने प्रोजेक्ट्स में भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था। तो मेरे को कोर की काफ़ी अच्छी नॉलेज हो गई थी उस पॉइंट तक। तो मैंने प्रोजेक्ट्स को अपने कोर की नॉलेज उनमें डालने की कोशिश की ताकि मैं फिर स्टैंड आउट भी करे और मेरी नॉलेज वो वेस्ट ना जाए। तो इसलिए मैंने वैसे तो डीएससी किया, बट मैंने इतना ज़्यादा एक्सटेंसिवली और कोई मैं प्रोजेक्ट्स के लिए कुछ नहीं किया। मैंने सिर्फ फ्रंट एंड किया और अपने कोर के प्रोजेक्ट्स को उनके साथ मर्ज आउट करने की कोशिश की। उसके अलावा मैंने जैसे हमारे करिकुलम में डीबीएमएस रूप्स होता ही है, तो मैंने जैसे हमारे में सिर्फ थ्योरी होती है तो मैंने एक्सटेंसिवली किया, कोड वगैरह सब और जो क्वेरीज वगैरह होती है सब किया। तो और उसके अलावा मैंने एप्टीट्यूड किया क्योंकि वो गोल्डमैन सैक्स में रिक्वायर्ड था, तो मैंने इसलिए उसमें किया। ठीक है। एप्टीट्यूड पे आपने कितना टाइम स्पेंड किया होगा? मैंने 2 to 3 days। ठीक है। एंड कंप्यूटर साइंस फंडामेंटल्स को करने में आपने कितना टाइम स्पेंड किया? मैम मुझे 1 वीक लगा था ऊप्स और डीबीएमएस दोनों अच्छे से करने में। ऊप्स और डीबीएमएस। व्हाट अबाउट कंप्यूटर नेटवर्किंग? मैम वो हमारे करिकुलम में नहीं था, तो मैंने इंटरव्यूअर को बोल दिया था, तो शी वाज फाइन विद इट। ठीक है। एंड व्हाट इज योर करंट सीजीपीए इन एसी? मैम इट्स 8.85। ठीक है। तो यू कम फ्रॉम एसी ब्रांच व्हिच इज लाइक आई पर्सनली फाइंड इट टू बी द मोस्ट डिफिकल्ट कोर ब्रांच। सो हाउ डिड यू मैनेज योर एकेडमिक्स अलोंग विद योर प्लेसमेंट ट्रिप? मैम फर्स्ट ईयर में तो सब मेसअप हो गया था। फिर मैंने समर ब्रेक में काफ़ी कुछ मैनेज करने की कोशिश की। उसके बाद फिर मैंने यही किया था कि रेगुलरली मैं सब कुछ करूँगी, जैसे डीएसए तो करती रहूँगी और एग्ज़ाम्स जैसे मैं पहले इलेक्ट्रॉनिक्स के सिलेबस को बहुत ज़्यादा मतलब और लाइब्रेरी से बुक्स लेकर आनी, उन्हें पढ़ना, पर फिर मैंने थोड़ा लाइट नोट पे लेना शुरू किया कि थोड़ा बहुत कम हो जाए चलेगा, क्योंकि एट लास्ट मुझे टेक में प्लेसमेंट चाहिए थी। तो ये थोड़ा एक सीनियर थी मेरी, उन्होंने गाइड किया था कि थोड़ा ये कम हो जाएगी, 8.85 से 8.6 तक भी चली जाएगी तो फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर डीएसए नहीं हुआ तो इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। तो इसलिए मैंने थोड़ा उसे कम किया और जैसे एग्जाम आते थे तो मैं उससे 2 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर देती, पर डीएसए छोड़ती नहीं थी, चाहे आधा घंटा चाहे 1 घंटा करती रहती थी। सिर्फ एग्जाम की वो उस ड्यूरेशन में सिंस हमारे ज़्यादा हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती थी तो उस टाइम छोड़ती थी, तो इसलिए मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन रखती थी। ठीक है। एंड टेल अस मोर अबाउट योर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस। किस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने रेज्यूमे के अंदर ऐड कर रखे हैं? कितने प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके रेज्यूमे में हैं अभी? मैम डेवलपमेंट में मैंने फ्रंट एंड की एक एनजीओ की वेबसाइट बनाई थी, तो एक वो है, और दूसरा मेरा एक कोर का प्रोजेक्ट था, वो एक टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम था। तो जैसे पहले उसमें बहुत सिंपली उस डिवाइस पे ही दिखता था,
तो मैंने उसमें क्या किया, अपना एक वेब पेज बनाया HTML CSS जावास्क्रिप्ट से, और मैंने उसमें लिंक कर दिया वाईफाई की हेल्प से, तो वो रिजल्ट उसमें डिस्प्ले होने लग गया। तो वो भी एक टेक प्लस सॉफ्टवेयर कोर का प्रोजेक्ट हो गया। Okay. And how many DSA questions have you done till now in total? अराउंड 400। 400. ठीक है. So, for a student who is just starting their internship preparation journey, let's suppose they are starting with DSA. So, what is your advice for them? उन्हें किस तरीके से approach करना चाहिए? And is there any specific thing that you would like to tell them? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ही रिसोर्स से पढ़ो, क्योंकि मल्टीपल रिसोर्सेज में बहुत कंफ्यूजन होती है और हमारे पास टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट होता है और हमें बहुत सारी चीज़ें करनी होती है, तो एक ही रिसोर्स करो। और मेरे पापा ने एक चीज़ करी, जब मैं सेकंड कोर्स खरीदने से पहले बहुत सोच रही थी कि बेटा कॉलेज में इतनी फीस जा रही है और एक्चुअली जिससे नौकरी लगने वाली है उस पर तुम इतना सोच रही हो, और ये तो बहुत ही छोटी इन्वेस्टमेंट है। अगर तुम इसका लॉन्ग टर्म देखो, इंडस्ट्री में तुम्हें एक स्टेप मिल रहा है जो कि अगर कॉलेज से निकल जाओगे उसके बाद ये बहुत हार्ड है। सिंस ही इज ऑल्सो इन कॉर्पोरेट, सो ही अंडरस्टैंड्स इट। तो उन्होंने ही मुझे थोड़ा कहा था कि मत सोचो ज़्यादा, तुम ले लो, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा है, तुम ले लो। सो इट्स रियली अ वेरी स्मॉल इन्वेस्टमेंट इफ यू थिंक एट दैट पॉइंट। मतलब अभी लग सकता है कि मतलब ये पैसे यहाँ यूज हो सकते हैं, अभी पेरेंट्स से पैसे क्यों मांग रहे, कॉलेज की फीस है। बट सीरियसली जिस दिन तुम्हारी इंटर्नशिप लगेगी, प्लेसमेंट लगेगी, योर पेरेंट्स वुड बी मोर देन हैप्पी एंड दिस अमाउंट वुड बी नथिंग इन फ्रंट ऑफ दैट। ओके, तो आई एम अज्यूमिंग अल्फा के साथ आपका एक्सपीरियंस ठीक रहा? बहुत अच्छा रहा, मैंने इसके अलावा कुछ किया ही नहीं है लिटरली डीएसए में। आपकी सारे क्वेश्चंस इन्हें मैं बार बार ड्राई रन करती थी असाइनमेंट्स को, जैसे आप वो टेस्ट केसेस में अलग अलग टेस्ट केसेस चेंज करके, लेकिन प्रॉब्लम्स मैंने यही किया। ठीक है, ओके। एंड लाइव सेशंस भी अटेंड किए थे आपने बैच के? मैम ने रेज्यूमे बिल्डिंग और लिंक्डइन का किया था और उन्हीं से सारे पॉइंट्स लेके मैंने बनाए थे। हाँ, वही 2 सबसे इम्पोर्टेंट सेशंस हैं। रेज़्यूमे वाले सेशन में क्या आपको यूज़फुल लगा सेशन से? मैम आपने एक तो जो कहा था कि कंपनी के रिस्पेक्टिव में बनाना, मुझे ये लगा था, जैसे मैं कोर की कंपनीज को भी टारगेट करती हूँ, मैंने 2 रेज्यूमे बना लिए थे, एक कोर के लिए, एक टेक के लिए, जो कि काफ़ी हेल्पफुल था। और एक हमारी सीनियर है, वो भी अल्फा बैच से ही पढ़ी हुई हैं, तो उन्होंने मेरा रेज्यूमे रिव्यू भी किया था उस हिसाब से, और उन्होंने भी फिर कुछ पॉइंट्स बताए थे कि दी ने ये बताया था ना, ये क्यों नहीं किया हुआ, तो इस टाइप से। नाइस, गुड, ठीक है। अच्छा, व्हेन यू केम टू IGDTU, आप अपना इंजीनियरिंग करने आए, यू स्टार्टेड विद ECE ब्रांच। व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशंस ऑफ फॉर अ टेक प्लेसमेंट और अ टेक इंटर्नशिप, एंड व्हाट डिड यू एक्सपीरियंस इन द इंटर्नशिप सीजन? मुझे ऐसा लगता था कि पहले सारे टेक के बच्चे प्लेस होंगे, उसके बाद वो लोग ईसी वालों पे नज़र डालेंगे, तो ऐसा नहीं था। गोल्डमैन सैक्स वाज अमंग द फर्स्ट कंपनी टू कम, और मुझे लगा था कि पहले तो अभी टेक के बच्चे होंगे, ईसी में तो कहाँ ही किसी को लेकर जाएंगे। एंड ग्लैडली आई वाज द ओनली वन हु वाज सिलेक्टेड इन ईसी, और ये मेरा मिथ टोटली टूट गया। Good. So you were the first ECE student in your batch to get selected for the internship opportunity. Great, nice. और आप साथ के साथ कोर की प्लेसमेंट्स के लिए भी अप्लाई कर रहे थे, so that is also I would say a huge thing. ठीक है, तो अपनी जो प्रिपरेशन है आपने थर्ड ईयर के स्टार्ट से ही आ गई है गोल्डमैन सैक्स कंपनीज, तो इनिशियल 2 इयर्स में आपने प्रिपरेशन किया है, तो आपने डीएसए पे सबसे ज़्यादा फोकस किया है। तो डीएसए प्रिपरेशन में आपके कितने मंथ्स का टाइम है जो लगाया होगा? मैम कंसिस्टेंटली तो 6 मंथ्स, बाकी वो ब्रेक में वीकेंड्स वगैरह उसमें काउंट नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं आधे टाइम तो रिवाइज ही कर रही होती थी पिछले वाला, ठीक, तो 6। पर कंसिस्टेंटली 6 मंथ्स का आपने टाइम लिया है। ठीक है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम कंसिस्टेंसी किस तरीके से मेंटेन करें, कि ठीक है मैम हमने स्टार्ट कर लिया 2-3 दिन 3 दिन पढ़ा, पर उसके बाद कुछ ना कुछ हो जाता है, कोई असाइनमेंट आ जाता है, कुछ और चीज़ आ जाती है जिसकी वजह से कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाती है। तो व्हेन यू रीस्टार्टेड फॉर द सेकंड टाइम, हाउ डिड यू मेंटेन योर कंसिस्टेंसी उसके बाद? मैम मैंने इसके लिए, जैसे मैं ईसी ब्रांच से, तो मेरे जो फ्रेंड्स थे वो कोर को टारगेट कर रहे थे, तो ऐसा कोई टेक का कोई ग्रुप नहीं था, तो मैंने पापा को बोलना शुरू कर दिया, अब हर 2 दिन बाद मुझसे पूछ लिया करो कितना हुआ है। तो एक्चुअली जैसे सपोज मैं ग्राफ्स कर रही थी, तो बीच में मेरी कंसिस्टेंसी टूट गई, तो वो 1 हफ्ते बाद पूछ रहे हैं ग्राफ्स, 1 हफ्ते बाद फिर से ग्राफ्स ही नहीं हो रहा है तुम्हारा, तो फिर वो अगली बार ये था कि अरे अगले हफ्ते पूछेंगे तो ग्राफ्स नहीं बोलना है, खत्म करते हैं इसे। तो इस टाइप से मैंने मेंटेन की थी कंसिस्टेंसी। ठीक है, तो फ्रेंड्स का उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि टेक रिलेटेड नहीं था, तो आपने फादर को बना दिया लाइक द पर्सन हु इज़ चेकिंग टू योर कंसिस्टेंसी, ठीक है। So eventually when you got the internship, and since this was the first company, first internship type thing जो काफ़ी स्पेशल होती है स्टूडेंट्स के लिए, what was your parents' reaction when you told them? My father was very happy. My mother was also really happy, and my siblings, grandmother, there was like a huge celebration. It felt like actually like a festival at home. It was really nice.
गुड। मुझे नहीं लगता कि गोल्डमन सैक्स जैसी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप लगने के बाद आपके कोई उतने ज़्यादा वैसे आपको रिग्रेट्स रहेंगे, पर फिर भी लेट्स सपोज़ आपको बोला जाए कि दोबारा से आपको फर्स्ट ईयर से अपनी प्रिपरेशन को रीस्टार्ट करना है। इज़ देयर एनी स्पेसिफिक मिस्टेक दैट यू वुड लाइक टू करेक्ट? अगर सेकंड टाइम आएगी तो ये मिस्टेक आप नहीं करना चाहोगे? मैं दोबारा से डीएसए स्टार्ट जैसे मैंने छोड़ दिया तो मैं दोबारा से वीडियो वाला वो बहुत ही मेरे लिए भी बहुत खराब टाइम था हुँ। क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था मैं अपना सारा टाइम वेस्ट कर दिया और वैसे भी वो गलत चीज़ थी। मुझे रिवाइज़ करना चाहिए था, क्वेश्चंस देखने चाहिए थे बट ट्यूटोरियल्स दोबारा नहीं देखने चाहिए थे। हुँ। तो वो एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, बहुत टाइम वेस्ट हुआ हुँ। और मोराल भी डाउन हुआ उस पॉइंट पे। तो एक ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी। ठीक है, ओके। Let's suppose there's a student who wants to get selected in a company like Goldman Sachs और फर्स्ट ईयर से अब उन्हें तैयारी करनी है, तो आप क्या बोलोगे सबसे पहले उन्हें क्या पढ़ना चाहिए, सेकंड में क्या पढ़ना चाहिए? तो फर्स्ट सेकंड ईयर इंटर्नशिप का ही हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट सेकंड ईयर में किस तरीके से उन्हें टाइम डेडिकेट करके क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए? उन्हें सबसे पहले तो डीएसए सिंस ओएम भी वही पूछता है और इंटरव्यूज़ में मेजरली डीएसए पे फोकस होता है तो डीएसए बहुत अच्छे से करना चाहिए। हुँ। सेकंड उसके बाद एप्टीट्यूड और बाकी ऑनलाइन जो पज़ल्स होते हैं वो, बट पज़ल्स डेली बेसिस वो 1-2 कर सकते हैं, उनके लिए ऐसे बैठने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो दिमाग चलता भी नहीं है उसमें ज़्यादा। दिन का जैसे रात को सोने से पहले ही हम 1-2 कर लेंगे, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। और एप्टीट्यूड और उसके अलावा कोई भी एक स्किल नेसेसरी नहीं है कि जैसे उन्हें क्लाउड कंप्यूटिंग करनी है, वेब डेवलपमेंट करना है या एमएल करना कोई भी एक चीज़, बट जो मेजर फोकस था इंटरव्यूअर्स का वो था कि व्हिच प्रॉब्लम यू आर सॉल्विंग, व्हाई दिस प्रोजेक्ट एंड हाउ यू डिड इट। हुँ। सो इन पर फोकस करना है। कोई एक जैसे एक जो कॉमन मिस्टेक हो जैसे हम लोग अपने आसपास लोगों से कंपेयर करते हैं कि ये कर रहा है, ये कर रहा है हुँ। या रिसेंटली टेक्नोलॉजी आ रही है, सो वी एंड अप डूइंग 10 थिंग्स एट द सेम टाइम, but instead we should focus on one thing, make a good project out of it and learn it in a way that even if a question is asked about it we can answer it confidently. हुँ। ठीक है, तो एक और सवाल मेरा है, आजकल कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि मैम एआई का ट्रेंड आ गया है, पीपल ऑनलाइन इन वीडियोज़ आर सेइंग दैट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विल बी डेड, देयर विल बी नो जॉब्स फॉर डेवलपर्स। तो ऐसे में एक स्टूडेंट को प्रेशराइज़ फ़ील हो सकता है कि सारी चीज़ें ड्रॉप करके अब सीधा हम एआई ही करें। मतलब कोई डीएसए कर रहा है उसको छोड़ दे, कोई डेवलपमेंट कर रहा है उसको छोड़ दे। सो डिड यू आल्सो फ़ील द सेम प्रेशर? आई एक्चुअली फेल्ट इट क्योंकि वो बीच में ले ऑफ्स की काफ़ी न्यूज़ेज़ आ रही थी कि इन्होंने ले ऑफ कर दिया, फिर जब ज़्यादा डेप्थ में पता चला तो यही रियलाइज़ हुआ कि एआई की वजह से ही हो रहा है क्योंकि पहले जो 20 लोगों का काम था वो 10 लोग कर रहे हैं, 5 लोग कर रहे हैं क्योंकि एआई की हेल्प ली जा रही है। तो फिर बीच में ये था कि एआई सीखेंगे बट कभी ये नहीं था क्योंकि फंडामेंटल्स यही रहेंगे, डीएसए करना ही पड़ेगा, स्किल डेवलप करनी पड़ेगी, प्रोजेक्ट्स बनाने ही पड़ेंगे। साथ में एआई सीख सकते हैं ताकि हमारा काम और ईज़ी हो जाए। जैसे आजकल हम कोडिंग के लिए भी हेल्प ले लेते हैं एरर्स वगैरह रेक्टिफाई करने के लिए या वेब डेवलपमेंट में हम और जल्दी बनाने के लिए, तो हेल्प ले सकता है बट ये सब चीज़ें रिप्लेस तो अभी नहीं हो रही है नियर फ्यूचर में। ठीक है, आपके रिज्यूमे में व्हाट डू यू थिंक वाज़ द स्पेशल थिंग और द वाओ फैक्टर जो हो सकता है किसी इंटरव्यूअर को इम्प्रेस करेगा इंटरव्यू के अंदर या किसी इंटरव्यूअर ने अप्रिशिएट किया हो इंटरव्यूज के अंदर? एक मेरा प्रोजेक्ट था वो आईओटी बेस्ड टेम्परेचर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो काफ़ी अप्रिशिएट किया था मेरे थर्ड इंटरव्यूअर ने। तो उसमें उनका यही था कि मेरा जैसे मैंने अपने कोर की नॉलेज को एक्सटेंसिवली यूज़ कर साथ में फ्रंट एंड स्किल्स को भी यूज़ करके एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बन गया क्योंकि पहले जैसे वो प्रोजेक्ट था उसमें केवल छोटा सा दिख रहा था, हुँ। वो इतना मतलब अपीलिंग नहीं था, पर फ्रंट एंड से तो उसे काफ़ी अपीलिंग बना दिया गया था। और एक मेरा सेकंड था वो रिसर्च पेपर था, जैसे इंटरव्यूअर से मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि गोल्डमैन सैक्स एप्रिशिएट करता है रिसर्च वगैरह को भी, हम आगे जा सकते हैं। तो एक इंटरव्यूअर वो कर रहा था रिसर्च, तो उसे काफ़ी इंटरेस्ट था कि कैसे अप्रोच किया टॉपिक को, कैसे सोचा, कैसे नोवेल्टी लाई, कितना टाइम लगा, तो इस पे। So you got selected in Goldman Sachs, which is like a dream category company. Tell us the top 3 things that helped you get selected. फर्स्ट डीएसए, Hmm. second my core knowledge plus the web development which I made to use the projects, and third would be communication skills. Since वो पेपर और पेन पर इंटरव्यू था तो हमें पूरा टाइम कम्युनिकेट ही करना था, वी कांट राइट द होल कोड और इतना टाइम उनके पास भी नहीं था। तो वो कह ही रहे थे कि बिल्कुल शॉर्ट में लिखो, सिर्फ ये लिखो, जस्ट स्किप दिस स्टेप। और जैसे वो क्वेश्चन समझा रहे थे, कहीं पे हमें लिखा हुआ नहीं दिख रहा था, टेस्ट केसेस हमें पूछने पड़ रहे थे कि इज इट दिस व्हाट यू मीन, तो कम्युनिकेशन क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतनी कम्युनिकेशन आनी चाहिए दैट यू आर एबल टू एक्सप्रेस कि आप क्या बोलना चाह रहे हो और समझ आ जाए कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं। Okay, so how did you work on your communication skills?
मैं एक्चुअली गूगल मीट ऑन करके खुद से बात करती थी, मतलब मैं रिकॉर्ड कर लेती थी, जैसे अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपना जैसे मैं वीएस कोड का स्क्रीन शेयर करके समझाने लग जाती थी कोड, फिर मैं सुनती थी। जैसे बीच में मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब मैं डर जाती तो मेरी स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है बोलने की, तो मैंने उस पर थोड़ा काम किया कि धीरे बोलना है। ठीक है। तो आपने काफ़ी स्टेप्स लिए लाइक बिफोर यू वेंट फॉर इंटरव्यूज़। गुड। इसके अलावा और कुछ स्पेशल टेक्नीक जो आपने यूज़ करी हो? जैसे ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि गूगल मीट पे खुद स्क्रीन शेयर करके यू कैन रिकॉर्ड इट एंड उसके बाद यू कैन रीवॉच इट। इसी जैसी कोई और चीज़ जो आपने यूज़ की हो टू प्रिपेयर बेटर फॉर योर इंटरव्यूज़? लिटिल बिट जो मैं बोलना चाहूँगी वो था इम्पोर्टेंस मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी का। हुँ। जैसे हम रिजेक्शन, जैसे मेरे को सेकेंडरी में बहुत रिजेक्शंस आए थे क्योंकि मैंने डीएसए नहीं किया था उतने अच्छे से। तो कंपनीज़ है मेरे कॉलेज में, उबर, लिंक्डइन, सबने इसी को अलाउ किया था। हुँ। बट मेरा ओए क्लियर ही नहीं हो पाया क्योंकि डीएसए कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उस पॉइंट पे बहुत बुरा लगा था। फिर मैंने लिंक्डइन की हेल्प से और रेफरल्स के लिए ट्राई करके ऑफ कैंपस इंटर्नशिप अप्लाई करने की कोशिश की, बट उसमें भी काफ़ी रिजेक्शंस आए। तो उस पॉइंट पर मुझे काफ़ी ऐसे बुरा लगता था और वो इतना डिमोटिवेटिंग था कि मैं डीएसए भी नहीं कर पाई, तो एस्केप ढूँढने लग गई थी मैं उससे कि क्योंकि वो उसको खोलते ही रियलाइज़ होता था कि मतलब क्या अगर ये तब किया होता तो हो जाती, आज इंटर्नशिप होती। तो उस पॉइंट पे जैसे थोड़ा मेडिटेशन कर लेना, इस दिमाग को शांत कर देना, क्योंकि और स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिखाती है कि अभी हमें लग रहा है कि प्रॉब्लम है, बट एक्चुअली में देखेंगे 10 साल बाद तो प्रॉब्लम नहीं है और जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो दीज थिंग्स रियली हेल्प। तो ये सब। थॉट प्रोसेस बेसिकली आपने पॉजिटिव रखने की कोशिश की कि नेगेटिविटी में नहीं जाना एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड एज अ स्टूडेंट्स की रिजेक्शंस भी पार्ट ऑफ द प्रोसेस होते हैं एंड सेकेंड ईयर उतना कोई लेट नहीं होता, इट्स जस्ट द स्टार्ट ऑफ कॉलेज। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेकेंड और थर्ड ईयर में ही शुरुआत करते हैं कॉलेजेस के अंदर, तो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल एंड थर्ड ईयर में यू क्रैक्ड अ गुड अपॉर्चुनिटी। तो रिजेक्शंस आ रहे हैं, कोई नहीं, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। आपको अपना काम करते रहना है, आपको चीज़ें सीखते रहना है, यू नेवर नो कब अपॉर्चुनिटी हिट कर जाए। ठीक है, गुड। थ्रूआउट द इंटरव्यू प्रोसेस डिड यू फाइंड एनी चैलेंजिंग पार्ट जब आपको लगा कि अच्छा ये बहुत डिफिकल्ट पार्ट है, अब हो भी पाएगा नहीं हो पाएगा? एप्टीट्यूड के लिए मुझे लगा था कि क्योंकि ओए में एप्टीट्यूड सिर्फ 11-12 जितना ही था, तो मुझे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई नहीं उसमें। बट फिर बाद में मुझे इंटरव्यू जैसे सीनियर से मैंने पूछा कि और क्या पूछते हैं, तो उन्होंने बताया कि पजल्स पूछते हैं और एप्टीट्यूड एक्सटेंसिवली पूछते हैं। तो मैं ज़्यादा एप्टीट्यूड कवर कर नहीं पाई, बट थैंकफुली मुझसे पूछा नहीं गया एप्टीट्यूड। पजल्स मैंने ऐसे ही किया था दिन में 2-3, तो वो मैंने कर लिए थे 50 तक इंटरव्यू के टाइम तक। ठीक है। इज देयर एनीथिंग एक्स्ट्रा दैट यू वुड लाइक टू शेयर फ्रॉम योर जर्नी? मैं एक ये मैसेज बोलना चाहूँगी कि अपॉर्च्युनिटी जैसे आए तो अप्लाई कर देना चाहिए। जैसे हम लोग सोचते हैं कि मतलब अभी हम प्रिपेयर्ड नहीं हैं, नहीं अप्लाई करते या फिर बाकी बच्चे काफ़ी प्रिपेयर्ड हैं, तो यू हैव नथिंग टू लूज़, मतलब रिजेक्शन ही आएँगी, उससे कुछ हमारा कुछ जाएगा तो है ही नहीं। तो अप्लाई कर देना चाहिए। हम कुछ सीख कर ही आएँगे, कुछ खोने के लिए नहीं है और क्या पता वो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी निकल जाए। हाँ। एंड इन फैक्ट अगर लेट्स सपोज हम प्रिपेयर्ड भी नहीं है, तो अगर हम किसी कंपनी का ओए भी दे रहे हैं बिना प्रिपेयर्ड हुए, तो एटलीस्ट हम ऐसे सोच सकते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी, कुछ नए क्वेश्चंस हम सीख लेंगे। ठीक है, वेरी गुड थिंग। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पीसेस ऑफ एडवाइस आपने शेयर किए, जो आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे, क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो दिमाग के अंदर जाती हैं, तो कहीं न कहीं तो हमें हेल्प करती हैं जर्नी के अंदर। तो गोल्डमैन सैक्स के अंदर आपकी इंटर्नशिप अभी नेक्स्ट ईयर स्टार्ट होगी, जून के अंदर। ठीक है, ओके। आर यू एक्साइटेड फॉर द इंटर्नशिप? वेरी एक्साइटेड। ठीक है, गुड। तो ठीक है यशिका, कुछ और एडिशनल जो आप किसी लेट्स सपोज अपने किसी जूनियर के साथ शेयर करना चाहोगे, कोई और पीस ऑफ एडवाइस या किस तरीके से उन्हें चीज़ों को अप्रोच करना चाहिए? स्टार्ट अर्ली, उसका मतलब जो भी जल्दी स्टार्ट करता है उसका कोई मतलब है ही नहीं अल्टरनेट। इफ़ यू स्टार्ट अर्ली तो आप बहुत बड़े एडवांटेज पर होते हो दूसरों के साथ। जैसे मैंने बहुत लेट डेवलपमेंट वगैरह किया और उसके बाद मेरे कमिटमेंट्स भी बहुत थे प्रोफेसर्स के साथ प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो इसलिए मैं हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। बट जो भी मैंने मतलब सीएससी वगैरह वालों को देखा, उनके बहुत अच्छे और बहुत ईज़िली प्रोजेक्ट्स बन गए हैकाथॉन के अंदर और एक्सपीरियंस भी मैंने सुना बहुत ही अच्छा होता है। तो अपनी स्किल्स जो भी करनी है वो थोड़ा जल्दी कर लो। फर्स्ट ईयर में बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ आती हैं, बहुत टाइम होता है, तो जस्ट पार्टिसिपेट इन इट। ठीक है। ओके यशिका, बहुत अच्छा लगा हमें आपसे बात करके
एंड आई होप कि हम सबको भी एज अ स्टूडेंट यशिका की जर्नी से काफ़ी सारी इंस्पिरेशन मिली होगी। द बेस्ट थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट हर जर्नी वाज कि इनिशियली जब उन्होंने डीएसए को स्टार्ट किया तो किसी रीज़न की वजह से वो ड्रॉप हुआ, पर उन्होंने वहाँ पर गिव अप नहीं किया, व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। गिव अप नहीं किया, चीज़ों को दोबारा स्टार्ट किया एंड शी वाज एबल टू कंप्लीट द एंटायर थिंग। एंड वही इवेंचुअली चाहिए होता है हमें। बीच में डेफिनेटली हम कुछ भी करेंगे, चाहे हम डीएसए कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, मशीन लर्निंग कर रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, बीच में डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स आएंगे या कुछ ना कुछ सिचुएशन हो सकती है जब चीज़ें हमारी छूट जाएंगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमें क्विट नहीं करना, हमें चीज़ों को दोबारा से अपनी कंसिस्टेंसी को वापस लेकर आना है। एंड उसका एक काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल यशिका की जो कंप्लीट जर्नी है वो है। सो वी विश हर ऑल द बेस्ट एंड वी ऑल्सो विश यू ऑल द बेस्ट। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।